Hello, everyone. I'm Abhilash, and welcome to this edition of Career Talkies with Abhilash. This is a special edition, basically on 21st of April. 21st of April is celebrated in India as National Civil Services Day, and this is very important because हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो बच्चे जिस करियर के प्रति फॉर द करियर वेयर दे स्पेंड देयर मैक्सिमम यूथ is about civil services examination. That might be UPSC based or state service based civil service examination. जो हम commonly बोलते हैं IAS, IPS and other foreign services or forest services, multiple services are there which manage the public service domain of this country. Today, I have with me uh, somebody representing the youth of India, an aspirant himself who has faced multiple exams of UPSC. He will talk about it more, and also has faced civil services examination interview. He has qualified for interview. He has seen all the sides of the stage of preparation because the exam, considered as one of the toughest exam in the world, is also one of the longest exam. It takes time. And today we are going to talk about the various decision making challenge. क्या क्या किन किन परिस्थितियों में with his background, what challenges he faced. It might be motivationally, it might be financially, it might be psychologically, and what are the people or stakeholders जिन्होंने इनके साथ uh, इनका साथ दिया इन दिस काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज अगर आप कुछ डिसाइड नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ोगे कैसे. तो विद दिस आई वेलकम अमन वर्मा. हाय अमन, गुड इवनिंग एंड Hi, वेलकम sir. टू द पॉडकास्ट. Good evening. Good evening. So please be very comfortable in whatever language you want to speak because हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं. तो आजकल सारा यूट्यूब में फीचर्स भी है, टॉप सब टॉप्स इनटू इंग्लिश एंड टॉप्स इनटू हिंदी एंड so Aman is from Himachal, and basically he's now connected from Shimla, and he will talk more about his background on education. But the most fantastic part of Aman is he is somebody who has uh, एक डिसीजन उन्होंने शायद से 14 साल की उम्र में लिया था, और उस डिसीजन के प्रति उन्होंने अपना एवरी मोमेंट एवरी ईयर ही हैज उस पर एक डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने डेडिकेट किया है. डेफिनेटली भी ये सच्चाई बहुत सारे बच्चों की है कि जब एक छोटी सी उम्र में एक वो डिसीजन लेते हैं, परिस्थितियां उनके साथ रहती है, कभी नहीं रहती है, बट देर आर वेरी फ्यू हु टेक दैट एक्शन अबाउट दैट डिसीजन जो उन्होंने लिया होता है. मैं कहना चाहूंगा इन अ वेरी स्मॉल वे, जब हम बचपन में जब बच्चों से पूछा जाता है आप बड़े होकर क्या बनोगे, जो फैंसी कैरियर्स होता है बच्चे वही बोलते हैं. कोई बोलता है एस्ट्रोनॉट, कोई बोलता है कुछ साइंटिस्ट का कुछ बोलेगा, बट जिंदगी में शायद से वो आगे करते भी नहीं उस पर कुछ. बट जब आप 10वीं के आसपास जाते हो तो बहुत बच्चे बोलते हैं हम आईएएस बनेंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट रोल मॉडल दे वुड हैव सीन इन देयर डिस्ट्रिक्ट, और जो एक डेवलपमेंट के बारे में बात करता हुआ पर्सन. बट जो उस बात को रखने के लिए काम करे उस पे, बिकॉज आगे की परिस्थिति क्या है, वो बहुत कम बच्चे होते हैं. एंड विथ मी टुडे इज अमन, वन ऑफ द वेरी फ्यू इज टेकिंग एक्शन ऑफ वट एवर डिसीजन ही मेड इन हिज यंग टाइम. सो अमन, firstly thank you so much because you spoke to me about it. I couldn't hide it from our audience कि आपकी बैकग्राउंड और आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ. may I request you to please थोड़ी सी हमारे ऑडियंस के लिए you can talk from your school phase, your decision making phase, your background, your challenges in life, and then your graduation, and then your UPSC journey and your current state of action. Okay, sir. Thanks. First of all, thank you very much for inviting me. I'm 24 years old, and as a youth, I can say कि हमें कहीं express करने का मौका मिले जिससे many of us who are in the same situation can connect. So, with that in mind, I'd like to start. Sir, first of all, my education had been throughout the Shimla, had been in throughout the Shimla from 10th to college. I studied in DAV Public School, which is a very known institution. In plus one, I took science, non-medical as an option, and in graduation, I switched to commerce because I wanted to experience different things.
एंड एज यू सेड यूपीएससी एज अ करियर ऑप्शन एक ऐसा फील्ड है जो हमें वाइड वैरायटी ऑफ चैलेंजेस, वाइड वैरायटी ऑफ एक्सपोजर देता है, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ एज वेल एज फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन सबके लिए मदद करता है। तो मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स में की थी। उसके बाद मेरा टारगेट क्लियर था यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जाना। तो 2022 में आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। इन 2023 में आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट विद द ऑप्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे मैंने आर्ट्स में स्विच कर लिया। प्लस वन में साइंस थी, कॉमर्स और यहाँ आर्ट्स, एक पूरा स्ट्रीम ऑफ वो हो गया था कि जो हो सकता है देख ले, चैलेंज कर ले। तो फिर उसी माइंडसेट से आया कि क्या है, चैलेंज आएगा, होराइजन ब्रॉड होंगे। तो उस पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म से, एंड यू कैन कॉल इट ऑल्सो बिगनर्स लक, मैं 2023 के अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया था। एंड आई फेल 8 मार्क्स शॉर्ट ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद सर, जब पता है आपको, वो एक्साइटमेंट यूफोरिया था, कैरी कर रहा था। आई थॉट कि आई विल श्योरली मेक इट इनटू द लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब अच्छा जा रहा था, तो आई एक्सपेक्टेड कि लिस्ट में नाम तो आएगा। बट जब नहीं हुआ, एंड यू नो उसके बाद 45 डेज के आसपास प्रीलिम्स होता है, कैसी स्टेट ऑफ माइंड होती है, कुछ समझ नहीं आता है। तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। कल को अगर मैंने बनना है, ये इस चीज में जाना है, ये करियर ही ऐसा है, कल को हमारे देश में कुछ भी इमरजेंसीज आ जाती हैं, सो ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल द सिविल सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज, दे आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। उनको करना पड़ता है अपना माइंड कूल रख के। तो मैंने भी यही सोचा कि प्रेशर में यू डोंट हैव टू क्रम्बल। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक वे से आई स्टार्टेड, जस्ट आई ओपन माई बुक्स, मैंने कर दिया बस शुरू की, सोचना नहीं है अब उस तरफ। मैंने दिया अपना 24 का प्रीलिम्स, आई ऑल्सो क्रैक्ड इट। उसके बाद मैं मीन्स में बैठा। तो उसके बाद आई वॉज नॉट एबल टू क्रैक द मीन्स, बिकॉज यूपीएससी जो एक एग्जाम है, इट डिमांड्स ओरिजिनलिटी। ऐसा नहीं है कि आप नोट्स रट रट के खत्म कर देंगे। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था, आई वॉज वेरी ओरिजिनल, आई वॉज विदाउट एनी कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट। सेकेंड अटेम्प्ट में आई वेंट टू एकेडमिक, बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन में चला गया, ज्यादा ही कोट करने लगा चीजें, जबरदस्ती की जो आंसर में डिमांड भी नहीं है। सो आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर मेन्स। और उसके बाद 2025 में मैंने दिया प्री। और ऐसा कहते हैं जैसे अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर सी सैट बाय वन क्वेश्चन। अजम्पशंस इतनी सारी आ गई थी, एंड अजम्पशन वाज माय वीकेस्ट पार्ट ऑनेस्टली। और मैंने मैथ्स मेरा क्लियर हो गया था विदाउट अटेम्प्टिंग एनी अजम्पशंस, और अजम्पशंस मैंने 14 में से 12 गलत कर दी, और मेरा वो 87 से सीधा 50 पे चला गया स्कोर। तो उस टाइम जब मुझे पता लगा, दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट आई वुड से इन माय लाइफ। I would say कि my father passed away in 2014. So I had seen as a single mother and as a only child, जिस पे के ऊपर सबकी नजर रहती है करियर पे, कि he is the one who will carry the beacon for us. अभी मेरी मदर स्ट्रगल कर रही है, तो आपको पता है उनकी उम्मीद रहती है कि he will carry it. तो मेरी एजुकेशन भी उसी बेसिस पे हुई थी। वी वर नॉट वेरी फाइनेंशियली स्ट्रांग। सो मेरी एजुकेशन हुई है सारी स्कूल स्पॉन्सर्ड थी, एंड दैट टू ऑन द कंडीशन दैट आई परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन रिजल्ट्स। सो मेरा 10th में 10 CGPA था, 12th में मेरा 92.8 परसेंटेज थे। आफ्टर दैट कॉलेज में भी मेरा अपने मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्शन हुआ था। एंड इन कोचिंग में इसीलिए मैं जा नहीं पाया, बिकॉज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वर वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड मैं अपने मदर को परेशान करना नहीं चाहता था। तो इतना सब झेलने के बाद भी 2025 आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। आई वाज इन दिस वेरी रूम विद माय फ्रेंड। एंड उसके बाद मैंने अपने आप को ही पंच कर लिया था, बिकॉज हम सोचते हैं कि क्या कर रहे हो तुम, व्हाट अ स्टूपिड मिस्टेक, आई ब्लेड राइट हियर इन दिस रूम। लेकिन एक दो दिन में संभला, खुद को संभाला मैंने। फिर मैंने सोचा कि इफ यू दिस इज अ डीप शेल, अगर आप एक बार पेसिमिस्टिक उसमें चले गए, तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, यू कैन गो इनटू ड्रग्स, यू कैन गो इनटू डिप्रेशन, यू कैन गो इनटू सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज। मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली थी, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो उनकी मदद से जब मेरा प्री नहीं हुआ, आई हैड अ 1 year इन माई हैंड फॉर बिफोर 2026 मीन्स प्रीलिम्स अगेन। और आपको पता है सर, 1 साल अगर हो तो आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है, बोलता है अभी टाइम है, टाइम है, हो जाएगा। तब ना प्री की तैयारी हो पाती, ना मेंस की हो पाती। तो मेरा पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मुझे चैलेंज चाहिए था। सो आई फिल्ड अगेन ऑल ऑफ द एग्जाम्स विच वर देयर, इंक्लूडिंग यूपीएससी सीडीएस, यूपीएससी सीएपीएफ, यूपीएससी एफकैट एंड यूपीपीसीएस एज वेल, ताकि मैं कम से कम शार्प रहूं। आई वुड नॉट थिंक अबाउट द नेगेटिव्स। मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहे पढ़ाई की तरफ, क्योंकि पढ़ाई ही मेरा एक ऐसा वेपन है which I can sharpen again and again. And once the time will come, once the opportunity strikes, I should be ready.
तो मैंने सारे एग्जाम दिए और बाय गॉड्स ग्रेस मैंने सारे क्लियर किए। अभी मैं अप्रैल 29th को यूपीपीसीएस का मेंस दे के आया हूँ। 12th को मैंने उसका प्रीलिम्स क्लियर किया। अभी मई 19th को मेरा सीएपीएफ का पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो अगस्त 3 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। आई ऑल्सो क्लियर सीडीएस, आई ऑल्सो क्लियर एफ कैट रिटन एग्जाम्स। सो मेरा कहने का मतलब यही है, यूपीएससी एक जो कहते हैं लूप है, इट इज नॉट ऑल अबाउट नेगेटिव। ये आपको लाइफ के बारे में सिखाता है। कईयों का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, दे आर वेरी लकी, इंडीड दे आर टैलेंटेड। बट आई एम अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट, मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, उसके बाद भी मेरा अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इट डज नॉट मीन यू डोंट हैव इट। तो जिसका भी नहीं हो रहा है इस टाइम, उसको ये नहीं सोचना कि हम केपेबल नहीं है। उसको एक लाइफ की सिचुएशन है, देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। So what you can do is focus on things which you can control with a shred of optimism. Believe in whatever you believe, God, universe, manifestation, spirituality. And I would suggest कि एक आप अपनी साइड हॉबी ऐसी रखिए, बीट फिजिकल जिम, बीट मेडिटेशन, म्यूजिक प्रैक्टिस करिए, कोई नई स्किल भी सीखिए। ऐसा नहीं है कि पूरे साल आप लगे ही रहेंगे यूपीएससी में। आई रिसेंटली लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार इन हिली स्टेशन। उसमें मतलब आप मोनोटोनस नहीं रहना चाहिए आपका। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू स्टडी व्हेन यू हैव टू स्टडी। उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बट उसके साथ आप अपनी एक लाइफ को रिच भी रखिए। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आइसोलेशन में चले जाइए। वही होता है यूपीएससी में मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के साथ, और दैट लीड्स टू फेल्ड मेंटल हेल्थ। एंड अल्टीमेटली अगर वो मेंस वगैरह क्लियर भी कर जाए तो पर्सनैलिटी में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि 2 महीने में वो चीज़ नहीं सुधर सकती जो आपने 4 साल में नहीं की है। और मेंटल हेल्थ Okay. के लिए भी। So हाँ अभी अभी सर। before we go to the next phase of this thing, एक I would like to know in a, because you spoke about the entire all the phases of your life from schooling to यस सर। college and this thing. But एक in a when every year is going on, like for example you give 10th when you are at age of 15, पूरा दुनिया बोलता है 10th is the यस। exam, it will decide everything, it will decide everything. यस। एक पर्सपेक्टिव मुझे उस दिन का चाहिए। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? जब ऑब्वियसली आपको भी बोला गया होगा नहीं बेटा ये एग्जाम है, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रूविंग योरसेल्फ, यू नो, बातें तो बहुत हो गया आज तक कि ये है वो है, योर 10th विल you gave a percentage, ma'am. I'm not asking on the percentage part of it. I'm asking on the ओके। as a child, what kind of pressure you went through, or you took a determination to study and then you did something. You realized why यस you सर। told. I'm sure sorry about your father, and in fact I understand the kind of challenges you are going through and you have gone through in the past. But ये तो मैं कहूँगा that you have heroically proven your point multiple times. So it is a matter of day or two that when you get to any of these services and serve the country and, you know, make everybody proud. In fact, you have made everybody proud already. That is not a challenge. थैंक यू It's a सर। matter of थैंक यू। time. थैंक यू। बट कमिंग टू द पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ दोज लाइव्स, क्योंकि ये जो ओके। आज जो बच्चे जो चैलेंज जो हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, बट इम्पल्सिव एंड वेरी, एक रिजल्ट को कैसे आप अपना लाइफ का ग्रेडिंग कर देते हैं कि आपका हो भी सकता है, बिकॉज कोकून मेंटालिटी में भी हो जाता है कभी कभी कि आप तो और कुछ देख ही नहीं रहे, तो आपको लगता है कि यही सब है, इट इज डिफाइनिंग। तो ऐसा एक्चुअली तो होता नहीं है एज यू गो, बिकॉज एक जैसा आपने भी अभी बोला, आई थिंक यू हैव दैट फ्लेयर कि मैं हर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कॉमर्स ह्यूमैनिटी आर्ट्स सभी देख लिया है कि बारी में तो वो भी एक अलग आपका आइडिया था बोल के आपने वो जर्नी लिया। जिनको नहीं होता तो फिर वो एक एक्सप्लोर करना, मतलब सर वी शुड एक्सप्लोर इन ऑर्डर टू रियली फाइंड व्हाट वी रियली वांट इन लाइफ। क्योंकि मैक्सिमम पीपल एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं टैलेंट्स, वो हर्ड मेंटेलिटी में चले जाते हैं। तो और फिर अगर आप किसी चीज को लाइक करते हैं तो आप उसमें एक्सीलेंस करेंगे अचीव। एग्जैक्टली, तो मतलब वो आपकी स्कूलिंग से आया होगा ना, यस वो जो वो अदा है या वो जो एप्टीट्यूड है आपका, वो ऑब्वियसली स्कूलिंग से आया होगा। सर, थोड़ा कीड़ा आप था पहले सर मेरे को दिन, चैलेंज लेने का। हाँ, मतलब स्कूल से करते आए होगे यस आप, सर। तो फिर यस लाइक सर। दैट, so you don't fear it, like I'll take the first step. यस सर। So my first यस question is about 10th class, because it is very important and critical on the fact. Second question is, second phase of decision is जब आपने, obviously you mentioned your so because of the merit you got the um, college admission, so you didn't have any problem as such. But usually लोगों को होता है, बहुत challenge होती है यस सर। finding a college worth or for a, you know, graduation का इसमें। थर्ड इज जब आप हमारा कंट्री प्लेसमेंट ड्रिवन एजुकेशन की तरफ
ध्यान रखता है कि बच्चे का प्लेसमेंट हो जाए और नौकरी लग जाए, कि एमबीए हो जाए। लाइक इट्स नॉट द एजुकेशन विच मैटर, द प्लेसमेंट, नौकरी की तरफ जाता है। तो आपके साथ वाले या आप जब थे फाइनल ईयर में, एंड योर कॉलेज के स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, द टीचर्स, या वो टॉकिंग, या आपके सीनियर्स, व्हाट वर दे फीडिंग यू इन योर माइंड कि आपके डिसीजन, ये सारे 3-4 फेज ऑफ डिसीजन मेकिंग आई वांट टू आस्क, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैं वर्क करूंगा, आई विल पैरेलली डू दी थिंग्स। कोई कर भी पाते हैं, कोई नहीं भी कर पाता, ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, बट ये अपने अपने जज्बे पे। आई वांट टू पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड योर सिनेरियो, स्पेशली बिकॉज अभी जस्ट बात करते करते मेरे ध्यान आया, शिमला इज वाज कंसिडर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ द कंट्री अंग्रेजों के जमाने में। सो इट हैज यस सर। ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑल द गवर्नेंस एंड ब्रिटिश बिल्डिंग, जो आपको बार बार ये तो याद दिलाता है कि इट हैज ए हिस्टोरिकल पोजीशन इन दिस यस कंट्री व्हेन सर। इट कम्स टू The ब्रिक्स एंड place where the Shimla Agreement, sorry to हाँ interrupt you, sir. एग्जैक्टली। The place where the Shimla Agreement of 1971 happened, the Viceroy House. This is just 2 kilometers away from where एब्सोल्युटली, I'm मतलब वो sitting तो right now. आपको तो दिन में 1500 बार यही दिखता होगा कि मैं हूँ जहाँ, जिसको हम इंडिया पढ़ते Exactly. हैं, वो आप देखते हो, तो यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड। That's it. So that is also one of the reason I wanted to ask कि इन सब चीजों में how important your decision making, और what was the dilemma you went through। तो कैसे आपने, obviously आपने मेरे को एक फास्ट तरीके से तो बताया ही कि अगर पेसिमिज्म Hmm. के जाओगे तो उसमें स्पाइरल में चले जाओगे, बट स्टिल आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट एज, 14 साल 15 साल की उम्र, फिर 17-18 साल की उम्र, एंड देन व्हेन यू आर आउट इन ग्रेजुएशन। Sir, starting from 10th, at think कि सबसे बड़ा डिसीजन हमारा 10th के एग्जाम्स, सब बोलते हैं कि इट इज मेक और ब्रेक इन योर लाइफ। वो ठीक है उस हद तक, बिकॉज दैट डिसाइड्स विच स्ट्रीम यू आर गोइंग टू परस्यू एंड दैट बेसिकली डिसाइड्स द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो हमारे पास ऑप्शन था, तो वो मेरी डिसीजन मेकिंग उसमें क्या थी, व्हाट माय माइंडसेट वाज कि अगर मैं साइंसेस लेता हूँ तो इट विल bring me a lot of opportunities. I can go for the competitive exams which are related to subject of arts. I can appear for JEE mains, I can appear for SSB, I can appear for banking exams which had the maths element in it. So मेरी mindset वो था कि 10th में I really usually the most of the youth हमें इतना पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमें फीड होता है वो कि यहाँ जाओ, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। बाकी जो बोलते भी हैं हमें डॉक्टर बनना है, हमें वो बनना है, यूजुअली इट इज सुपरफिशियल। कई होते हैं जिनका पहले से ही माइंड रहता है, बट जो हमारी माइंडसेट, मेरा माइंडसेट था कि इफ आई टेक द साइंसेस दैट वुड ओपन फॉर मी प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस फॉर द फ्यूचर। उसके बाद मैं ट्राई कर सकता हूँ। बाकी सिविल सर्विसेज और आर्मी वाज प्राइमरली इन माय माइंड, जो सो आई गेव द बोथ द एग्जाम्स। उसके बाद 12th के बाद जब हमने साइंसेस ली थी, उसके बाद प्राइमरली डिसीजन होता है कि जेई मेंस में अपियर करना है कि नहीं। सबने अपियर किया, मैंने भी अपियर किया। आई ऑल्सो गॉट क्वालिफाइड फॉर द जेई एडवांस एग्जामिनेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट था नहीं। आई फेल्ट लाइक कि वो हर्ड मेंटेलिटी है, 24 घंटे एकेडमिक्स कॉर्पोरेट लाइफ, वो मुझे इतना सूट करती नहीं थी, क्योंकि उसमें रेपिटेटिव हो जाता है, गोइंग फॉर प्रमोशन एंड ऑल जो भी रहता है, टेक्निकल जॉब है। मेरे को थोड़ा यूपीएससी या आर्मी, जो भी यूपीएससी स्पेसिफिक एग्जाम्स है, दे गिव अ मच मोर डाइवर्स पर्सपेक्टिव टू योर लाइफ। और एक सोशल प्रेस्टीज रहता है, पेरेंट्स का भी आपको पता ही है, इन्फ्लुएंस हर चाइल्ड में रहता है। इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स का एक तरीके से, वो हम चाहे ना चाहे, हम सोचते हैं हमारा डिसीजन नहीं है, लेकिन पेरेंट्स एक तरीके से एम्बेड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग, कि ये जगह जाना है, तो वो भी कहीं ना कहीं करता ही अफेक्ट। तो आईएएस और यूपीएससी तो आई थिंक 99.99% पेरेंट्स का रोल रहता है सबकी डिसीजन मेकिंग में, हर एस्पिरेंट की। बाकी अपना भी रहता है, लेकिन पेरेंट्स का कहीं ना कहीं रहता ही है। कॉमर्स किया, वहां पे भी मेरा थोड़ा माइंडसेट वो था, जो घूम रहा था कि आई शुड मे बी परस्यू फाइनेंस साइड, आईआईएम्स में जाऊं, कॉर्पोरेट लाइफ में थोड़ा जाऊं, उस तरफ बिजनेस स्टार्टअप वगैरह भी, वो भी थोड़ा डाइवर्स चैलेंजिंग रहता है ये चीज। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा कॉलेज था 2019 से 2022 तक, तो वो कोविड टाइम। कोविड ईयर्स थे। एग्जैक्टली exactly. और मेरा मेन जो मोटिव था डिसीजन टू pursue the commerce was to be in the environment where the people with the business mindset were.
मेरी क्लास में जितने भी हैं, मैं चाहता था कि मैं उनसे बात करूँ रिगार्डिंग फाइनेंस, स्टार्टअप्स एक्सेट्रा, बट वो मुझे मिल नहीं पाया बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी मे बी वांटेड मी टू शिफ्ट टूवर्ड्स अनदर वे। तो मेरा यूपीएससी से स्टार्ट करने से पहले आई वाज मेरा बहुत बड़ा डिलेमा था वेदर आई शुड गो फॉर कैट और यूपीएससी, बिकॉज दोनों बहुत अलग अलग एग्जाम्स हैं। और अल्टीमेटली मैं आया यूपीएससी पे ही। और उसके बाद यूपीएससी में एक फाइनल जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आईड लाइक टू एम्फसाइज इन डिसीजन मेकिंग इज, जो मेरा 2025 का प्री क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया टू टेक अप ऑल ऑफ द एग्जाम्स। आपको डिसीजन ऐसे हड़बड़ी में नहीं लेना है कि मैं छोड़ दूंगा, मैं कुछ कर लूंगा। और आई डिड नॉट टेक एनी डिसीजन इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मैं हमेशा गैप देता था एटलीस्ट 2 to 3 डेज का कि टू कूल डाउन। उसके बाद मैं सुनता भी हूँ टू फैमिली टू फ्रेंड्स, टेक एवरी वंस एडवाइस। बट उसके बाद एक ना एक अगर आदमी शांति से बैठ के एनालाइज करे, इंट्रोस्पेक्ट करे, तो उसको पता रहता है कि व्हाट देयर हार्ट इज सेइंग। और मैं बोलता हूँ कि आई यूजुअली और ऑलवेज गो विद माय गट। Good. So that one phase I understand that कि how you take your decision at various stage of life, वो बदला नहीं, वो आपने रखा है, सुना, मतलब एक समराइज करो अगर एक लाइन में, सुनो सबकी, करो अपनी टाइप के, that you are taking एग्जैक्टली। responsibility of इट्स taking your own action, yeah, after hearing from all the stakeholders. Now coming to our final phase of conversation here. अभी मैं एक्चुअली क्या है, मैंने एक चीज नोट करी while we were talking. You said you kind of had it as a beginner's luck, prelims का क्लियर होना, यस। और बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड दैट बच्चे पहले 11-15 महीना बिल्कुल तैयारी करते हैं, और पहला प्रीलिम जाते हैं और फेल हो जाते हैं, 99% एग्जैक्टली। पीपल फेल, चाहे कोचिंग हो, यस। नहीं हो, कुछ भी रीजन हो उसका, मतलब हमारा तो देयर इज अ नंबर। 2023 का टाइम था। हाँ, so there is a number डिसरप्टिव which is अटेम्प्ट था। qualifying, यस। मतलब 10,000 या कुछ 15,000 जो भी होता है, हम्म। तो नॉट नेसेसरी आप आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, ऐसा कोई गारंटी तो यस। है नहीं। प्लस बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, कौन सा कैटेगरी है, कौन सा क्या है, ये भी है, मतलब और भी काइंड ऑफ स्क्यूड हो जाता है, मतलब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली। हम हैं कि नहीं है, कि हमें नहीं पता। बहुत। और ऑनेस्टली ऐसा कोई गारंटी तो कह नहीं सकता कि मैं हमेशा नंबर वन टॉप, कोई मतलब टॉप एग्जैक्टली। वन पे रहूंगा या टॉप 10 में मैं ये प्रीलिम्स में एक क्वालिफाई कर रहा ये हूँ, तो वो एग्जाम सब। जो चीज आपको सिखाता है सर, सबसे ज्यादा वो सिखाता है कि आपके लाइफ में सब कुछ कंट्रोल में नहीं है। थिंग्स कैन गो राइट, थिंग्स कैन गो रॉन्ग, यू हैव टू जस्ट पुट इन योर एफर्ट। उसके बाद भी आपके कंट्रोल में नहीं है सब कुछ। हाँ, तो मैं अभी इस एग्जाम के ही पैटर्न में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 रिजल्ट है यहाँ पे, है ना, 3 एग्जाम है, 3 रिजल्ट है एक ही एग्जाम में, आपको वो ऊपर नीचे करने वाला है। प्रीलिम्स आपने दिया, या तो निकलेगा या तो नहीं निकलेगा, ये एक पहला फेज है फेलियर का, जो बहुत बड़ा झटका है। नहीं निकला मतलब चलो अगला एग्जैक्टली। 1 ईयर का पूरा मतलब गया। फिर आपने मेंस दिया, मेंस का पूरा अलग तरीका है, पढ़ाई वढ़ाई अलग है, आपने बिल्कुल यस। लिखा पढ़ी बहुत कुछ किया, ठीक है। आपने मेंस दिया, मेंस देने के बाद जैसे देके आओगे, आपको थोड़ी सी गैप फील होगा कि अभी तो कुछ मेरा टाइम है। तो अराउंड नवंबर दिसंबर में आता है इंटरव्यू का रिजल्ट, और आपको पता चलता है कि आप हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो, तो आपके पास 6 महीना है प्रीलिम्स देने के लिए, ठीक है। तो आपका माइंडसेट उस टाइम पे क्या होता है, और अगर आप हो, तो आपको पता नहीं कौन सा डेट आने वाला है आपका इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और आप दोनों की तैयारी अलग है, मतलब अगर आप नहीं हो, एग्जैक्टली। तो आप प्रीलिम्स की तरफ पढ़ना शुरू करोगे कि सोचोगे मेरा मेंस से क्यों फेल हो गया, क्या क्या क्या, 6 महीने पहले ही। पर अगर आप मेंस के लिए चले गए, तो आप दुनियादारी के बारे में, ओपिनियन अबाउट ऑल द वर्ल्ड एंड इंटरव्यूज का जो भी है करने शुरू करोगे, चाहे आपको पसंद हो या नहीं पसंद, काइंड क्रैमिंग अप, कि कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे अराउंड, या डैफ ये वो अदर एस्पेक्ट, वो भी आपने कर दी, खत्म किया, आपका खत्म हो गया दिन। अगर आपका नंबर पहले पहले आ गया है तो ठीक है, उसके बाद खाली है। अगर आपका नंबर बाद में आता है, तो हम एवरेजली पकड़ते हैं, मिडिल में आता है, सोचिए नोटिफिकेशन के बाद आता है आपका नंबर इंटरव्यू का, आपने कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का नंबर नोटिफिकेशन के बाद ही आता है इंटरव्यू का, जो चांस होता है। आपने यहाँ पे फॉर्म भर दिया है, मतलब यहाँ इंटरव्यू गए नहीं हो, लेकिन फॉर्म भी भर दिया है, क्योंकि क्या पता किसको क्या, ये एक है। एग्जैक्टली। आपका जो माइंड यहाँ, जो हर बार जो फेलियर, और मतलब मैं वही कहने की कोशिश, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ एज एस्पिरेंट, आप ये हर चीज, मेरे आपके सारे अटेम्प्ट में ये अलग है। पहले अटेम्प्ट में तो आप हर जगह पास करते हुए निकल गए, फाइनल डे तक, सबका जिस दिन टॉपर का रिजल्ट और आपका रिजल्ट एक ही दिन निकला, तो आपका तो एग्जैक्टली। पूरा हवा अलग ही लेवल पे हो। दूसरे वाले में तो आप पहले प्री प्री तो निकल गए, लेकिन मेंस में गाड़ी रुक गई, मीन्स आ गया।
हाँ, तो अच्छा, मेरी गाड़ी रुकी, तो अब पिछले वाला तो आगे चले गए थे, यहाँ तो पीछे रुक गया था, ईगो भी मे बी, आई डोंट नो, मैं पूछना चाहता हूँ वो पॉइंट। एग्जैक्टली। थर्ड पॉइंट आता है, फिर उसके बाद प्रीलिम में ही गाड़ी आगे रुक गई, उसके आगे ही नहीं गई। हाँ, नाउ अब बड़ा पिक्चर बना है, इसमें मेहनत ज्यादा कर रहे हो कि कम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो उल्टा हो रहा है, तो चाहे वो वट एवर, हाउ डू यू मैनेज, व्हाट आर योर, ये ऐसा आप तो सिंगल आदमी नहीं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा होगा, कोई 5 साल से प्रीलिम दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है कोई। I want to understand from your perspective what is your state of mind at each year, what happened, क्या सोच रहे थे आप, कैसे आगे आगे बढ़ा रहे थे। मैं नहीं चाह रहा, मैं नहीं पूछ रहा हूँ अभी आगे आप क्या करोगे, ये मैं पूछ नहीं रहा, आपने बोल दिया मैंने सारे एग्जाम दे दिए ना, मुझे खाली वो ओके। फेलियर और उसको जो हैंडल करने का 2 दिन 3 दिन का जो सिनेरियो, एक होता है आपका अटेम्प्ट के नंबर है, उम्र है, कई सारी चीजें भी है, फिर रिजल्ट आएगा, मार्कशीट आएगी, आप 15 लोगों के साथ कंपेयर करोगे, या लाइक दैट, can you speak on that part, because I think this should be the last phase of our discussion here, considering the career and the exam option. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जैसे आपने बोला कि मेरा पहले इंटरव्यू रह गया, फिर मेंस रह गया, उसके बाद प्रीलिम्स रह गया। जैसे हम देख रहे हैं एक रिग्रेसिव प्रोग्रेशन जा रही है। इसका नेक्स्ट जो फाइनल रिजल्ट है वो इंटरव्यू क्लियर ही है। मतलब आई एम श्योर कि इस बार 2026 में आई विल बी इन द लिस्ट उसके। एंड नाउ टॉकिंग टू द मेन पॉइंट जो आपने बोला, आई विल टेल माय जर्नी, आई विल टेल माय एक्सपीरियंसेस एंड आई विल फाइनली कंक्लूड इट बाय सेइंग द लर्निंग्स। ओके सर। सो 2023 फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा कोई मेंस की मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। आई स्टार्टेड इन 2022 और सबको पता है प्रीलिम्स का कितना बड़ा हुआ है इन सोशल मीडिया एज वेल एंड द एलिमिनेशन डेट। तो मैंने प्राइमरली प्रीलिम्स की तैयारी की थी और उसके बाद आई वाज ऑन अ ट्रैक, आई वाज रिटर्निंग होम और उसका रिजल्ट आ गया था विद इन 14 डेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैंने जब पीडीएफ देखी, आई वाज लुकिंग एट इट वर्टिकली। मैं देख रहा था मेरा रोल नंबर ही नहीं आया, मैंने 3 बार देख लिया रोल नंबर ही नहीं आया। उसके बाद मैंने देखा हॉरिजॉन्टली भी था। वो मतलब एक तरफ से मुझे लगा नहीं निकला और उसके बाद जब मैंने देखा निकल गया तो दैट वाज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इन ऑल ऑफ द साइकिल। फिर मैं गाड़ी में ही चिल्ला दिया था। तो वो प्रीलिम्स हो गया उस टाइम, चलो ठीक है, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज ऑन द सेवेंथ हेवन। उसके बाद फिर मेंस की स्टार्टिंग हुई। पहले तो आपको पता है सर, पहली बार प्रीलिम लिखा है 5 to 7 डेज आर्मी यूफोरिया में ही रहता है कि प्री निकल गया, प्री निकल गया पहले टाइम। उसके बाद जब फिर मेंस का पढ़ता है, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा था सर, बट आई वाज नॉट वेरी, मुझे पता नहीं था व्हाट आई वाज डाइविंग इनटू बिकॉज मेंस इज द रियल डील। तो जब मैं गया आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सिलेबस। कोचिंग लेने का टाइम भी नहीं था, तो मेरे को जितना छोटा छोटा रिसोर्सेज मिला है जस्ट गैदर्ड इट। और किसी तरीके से मैंने अपनी कम नॉलेज का ज़्यादा यूटिलाइजेशन करा हर पेपर में, पीएसआर का सब में किया इससे में, और मेरा हो गया। उसके बाद आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग टू क्लियर मेंस क्योंकि मैंने 2 महीने पढ़ा था डेडिकेटेड। आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग, आई डिड नॉट टेक एनी आंसर राइटिंग। तो मुझे इतनी एंटिसिपेशन थी भी नहीं रिजल्ट की। बट जो भी है हो गया। उसके बाद काफ़ी मैं वो था कि उस टाइम काफ़ी उस स्टेट ऑफ माइंड में था कि अब मेंस भी हो गया है, एवरीथिंग इज ऑन माई साइड, आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। उस टाइम मैंने कुछ नहीं देखा कि आई थिंक दिस विल बी दी अटेम्प्ट विच विल क्लियर एवरीथिंग। तो फिर मैंने इंटरव्यू की डेडिकेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट की। फॉर दैट टाइम आई वेंट टू दिल्ली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। 1 महीना रहा, किया जो भी। 14 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था, उसी दिन नोटिफिकेशन भी आई थी। मैंने सोचा भर देते हैं। तो उस दिन हुआ। उसके बाद जब नहीं हुआ तो आई वॉज वेरी डेवस्टेटेड ऑफ कोर्स, क्योंकि एक्सपेक्ट तो करता ही है सब। लिस्ट में तो नाम एक्सपेक्ट कर ही रहा था मैं, एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग। तो बट यूजुअली पता नहीं क्या था, रिजल्ट आने से आधे घंटे पहले आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद माई मदर। और हमारी इस बात पे कॉन्वर्सेशन चल रही थी कि व्हाट इफ इट डज नॉट, यू डू नॉट मेक इट। तो उन्होंने बोला डेस्टिनी है, तुम अपनी मेहनत करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, होप ना छोड़ना, यू आर केपेबल, बिलीव इन योरसेल्फ। और उसके आधे घंटे बाद रिजल्ट आ गया, नहीं हुआ। तो मेरे माइंड में वही बात स्टक कर गई कि थोड़ा बहुत तो दुख हो ही रहा था। लक्ष्मीकांत खोल रहा था, उस पर टिप टिप आंसू गिर रहे थे। बट आए 2-3 दिन मैंने थोड़ा रिकवर किया। मैंने सोचा इस बार प्रीलिम्स देना है कि नहीं। लाइक आई सेड, कोई भी डिसीजन कभी भी ड्रास्टिकली मत लेना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर आप रिग्रेट करेंगे। तो हमेशा कोई भी, अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ही फॉगी हो, यू शुड
सिट ऑन इट फॉर 2 to 3 days एटलीस्ट शायद से, नहीं तो एक हफ्ता होता है एवरेज टाइम। मेरे पास इतना टाइम था नहीं। 2 to 3 days में डिसाइडेड कि देना है। और उस टाइम भी स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, होता है वीकनेसेस। मैंने एक बार प्रीलिम्स की मार्कशीट भी देखी, तो आई वाज वेरी अबव द कट ऑफ, कि मैं 20-25 मार्क्स ऊपर था। तो वो भी मेरा एक फैक्टर था स्टेट ऑफ माइंड को डिसाइड करने में कि यू विल क्लियर प्रीलिम्स। तुम्हारे को पता है, तुमने पकड़ लिया है पेपर। मैंने दिया, सी सेट वॉज वेरी इजी, सब हो गया, प्रीलिम्स हो गया। उसके बाद मैं खुश था, बट आई वॉज नॉर्मल कि अब मेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस में कम मार्क्स थे तभी तुम्हारा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो वही स्टेट ऑफ माइंड था कि पूरी तरीके से मेंस की तैयारी करनी है। बट मैं पूरी तरीके से फिर उसी में घुस गया कि आई वॉज नॉट एबल टू गिव ओरिजिनल आंसर्स, थोड़ी इंटरलिंकेजेस कम हो रही थी, मैं फैक्ट्स में ज़्यादा घुस गया था। आई ऑल्सो टुक गाइडेंस, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, उस टाइम नई नई आई थी, वेरी पॉपुलर थी, और नॉट टेक द नेम। बट उसके चक्कर में आई थिंक आई लॉस्ट माई ओरिजिनलिटी। तो कोचिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आपको लेना है तो उसी पे ही नहीं पूरा बिलीव करना है। यू हैव टू पुट योर माइंड इनटू इट। अगर आपको सिविल सर्विस में ब्यूरोक्रेट जाना है तो आपको कोई गाइडेंस देने के लिए नहीं होगा, आपको अपना माइंड लगाना है। तो मेंस कभी जब नहीं हुआ था मेरा, तो देन आई वाज वेरी हार्ट ब्रोकन। उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड वही नम था। वी आई वाज नम कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या करें, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद भी आई टुक 1 week ऑफ फ्रॉम दी होल एग्जाम। उसके बाद मैं कहीं घूमने चला गया कि स्टेट ऑफ माइंड घर में पड़े पड़े ऐसे सड़े ना, चले गए। उसके बाद आई स्टार्टेड व्हाट आई डिसाइडेड माय प्लान ऑफ एक्शन। मुझे पता था डिसीजन मेकिंग में मेरा ये मेन था कि आई थॉट आई थॉट, आई लाइक टू एम्फसाइज, आई थॉट कि मेरा प्रीलिम स्ट्रांग है, तो आई वुड स्टडी फॉर मेंस टिल मिड ऑफ मार्च। मैंने मेंस की तैयारी की, उसके बाद मैंने प्रीलिम्स दिया, और आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स। उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड आर्ट से कि यही था कि क्या हो गया, मतलब ब्लर ही था एक तरीके से। मैंने आपको बताया बस, वो मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट था, बिकॉज वो एक तरीके रिग्रेसिव जा रहा था, पीछे जा रहा था मैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड। आई थॉट कि क्या कर रहा है तू। I- उस टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड सबसे खराब था। सो आई सजेस्ट कि आप, आपके एक दो जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, विच यू टॉक अबाउट द थिंग विद whom यू टॉक अबाउट द थिंग्स यू डोंट शेयर विद योर पेरेंट्स, होता है। तो आप अपने उन फ्रेंड्स से बात करिए, उनके घर रुक जाइए, नाइट आउट कर लीजिए, ट्रिप कर लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बिल्कुल अपने को पढ़ाई से छोड़ के उनके साथ रहिए, और ज़्यादा बात ना करिए यूपीएससी की, अपना कुछ और करिए। बीच में ये सब बात आ जाए तो बीच में उनकी एडवाइस ले लीजिए, लेकिन कम से कम उससे थोड़ा बाहर रहिए। पेरेंट्स से उसके बाद बात कीजिए, जो आपने कहीं से भी आपको एडवाइस मिलती है, कुछ भी है, आप सबको सुनिए ध्यान से, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। उसके बाद मुझे यही दिख रहा था सर कि पूरा साल है, मीन्स अगर निकलना होगा तो मैं 4 महीने भी डेडिकेटेड करूंगा, हो जाएगा। एक साल मैंने इसीलिए बाकी सब एग्जाम्स को दे दिया ताकि मैं शार्प रहूँ और मेरा थोड़ा माइंड उधर से डिस्ट्रैक्ट रहे। और जो लर्निंग्स है सर मेरी इन सब अटेम्प्ट से, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीथिंग। क्योंकि मेरा प्री कंसेक्यूटिव नहीं निकल रहा था विद वेरी हाई मार्जिन अबव द कट ऑफ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कट ऑफ इंक्लूडिंग सी सैट। तो मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था पहले कि प्री हो जाएगा। और मेंस में भी यही था मेरा कि सेकंड अटेम्प्ट में मेरा जब मेंस निकल गया था, मैंने बोला थोड़ी सी तो मेहनत करूंगा, हो जाएगा मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। हर चीज को रिस्पेक्ट दो, टाइम दो, ठीक है। और सेकंड ऑफ ऑल सर कि मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला यूपीएससी में, अ लेसन इन ह्यूमिलिटी। मैं आज भी ये कहना चाहूंगा, if I would have become the officer in first attempt, I would not be the person I am. So अगर मुझे चांस भी मिले कि तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑफिसर बन जाए, आई वुड नॉट टेक दैट चांस। क्योंकि जो फेलियर सिखाते हैं सर, वो सक्सेस नहीं सिखा सकती है। बिकॉज फेलियर में यू गेट 2 steps बिहाइंड, बट यू, वो लॉन्ग टर्म में आपके कैरेक्टर को बिल्ड करता है। अभी तो छोटी सी एग्जाम की चीज़ है सर, जब बड़े बड़े हम जाते हैं, हम कहीं देखते हैं यूपीएससी वालों ने भी सुसाइड कर ली, किसी ने रिजाइन कर दिया। अगर आपको प्रेशर हैंडलिंग आएगी, आपको ह्यूमिलिटी आएगी, आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, वो सेटबैक से ही होगा। और लाइफ में कभी भी सेटबैक्स हैं, उनको ये ना सोचो वाई मी, एम आई डूइंग रॉन्ग। उनको देखो आप क्या कर रहे हो गलत, और उसको इस पर्सपेक्टिव से देखो कि व्हाट कैन आई इम्प्रूव इन माई सेल्फ। फेलियर शुड बी द वे टू इम्प्रूवमेंट, नॉट द वे टू डिस्ट्रक्शन ऑफ योर सेल्फ। ये मेरी मेन
जो है लर्निंग्स थी इन सबसे सर। Fantastic. So I think we had a full heart conversation with Aman, and Aman का नाम ही है peace. So Aman has peace out with every of his action जो भी उसके साथ life has given him in every stage of his life. And definitely सर I I'd would like like to to wish. just Huh? सॉरी टू इंटरप्ट यू, I'd like to just say one more thing. Yeah, आप फेलियर्स की जो है, मैंने फेलियर्स की बात की, बट यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ. अगर आप अपना कर्म करें एज कृष्ण भगवान से निष्कम निष्काम कर्म, तुम्हें अपना कर्म करना है. यू आर द अर्जुन इन योर लाइफ. आप अपना कर्म करें, डेस्टिनी, यूनिवर्स, कॉल इट एनीथिंग, गॉड, आपको जहाँ लैंड होना है आप लैंड होंगे. एंड यू विल बी लैंडिंग इन द बेस्ट thing possible when you look back at it, provided you have worked for it. You never lost your hope, you never lost that grit, that work ethic, and that dedication and honesty towards what you want in life, sir. fantastic. So yeah, so with this conversation, kind of a heart-to-heart talk. Actually, I would like to, in fact, tell all my audience over here, जो हम एग्जाम हमारा जो वे ऑफ इन इंडिया जैसे हम अपना करियर बनाते हैं, देर आर मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ मेकिंग करियर. But career is something which is not one exam or one certificate or one this thing. Career एक 40-50 साल का या 30-40 years का जर्नी है जहाँ पे मल्टीपल जॉब्स होंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, मल्टीपल एक्टिविटी होगी. मे बी आपका आज का जो स्किल सेट है वो 20 साल बाद काम ही ना आए, कुछ और बदल गया होगा Yes, sir. जैसे आज के डेट में है. व्हाट हैपेंस इज कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात अमन ने कही कि जो लर्निंग ही स्पोक अबाउट इन द लास्ट फेज ऑफ आवर डिस्कशन, स्पेसिफिकली जब सेटबैक्स आते हैं, हाउ डू यू मूव ऑन, हाउ डू यू टेक अ डिसीजन व्हिच इज इम्बाइब्ड अपॉन यू. भाई आपने तो एग्जाम दिया लेकिन आपका नाम नहीं आया तो आप तो यू गेव योर फुल बेस्ट, बट देन इट काइंड ऑफ हिंट्स कि तुम्हारा बेस्ट और भी हो सकता है. इट इज नॉट येट Yes, योर sir. बेस्ट. So, coming to all this kind of experiences, so the God gives you everything to in your lifetime. आप कितना एनालाइज करते हैं, आप कितना Exactly. उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और हाउ यू मूव अप नेक्स्ट इज योर मेंटल कैलिबर या आपकी कैरेक्टर है जो डिफाइन कर. So with this, I feel that in seeing youngsters like Aman preparing for a career in bureaucracy, India is definitely going to have a whole lot of good mindset, people with strong mindset to handle, deal uh, the tomorrows, the unknowns of tomorrow. So what I feel that every career, in fact, all of us who've had some 10-15 years of career or work, ये एक चीज हम सब ने नोट किया है कि एवरी डे इज टू डील विद अनसर्टनिटी. हमें पता ही नहीं होता दिन भर में होना क्या है, रात भर में करना क्या है, बट वी आर एट ए पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. Responsibility to self, to the person who's giving a salary, and to the family from whom we are feeding and think, and accountability to the self and the country for which you are Yes, given sir. that position of power or job. It doesn't matter private हो या पब्लिक सेक्टर हो. तो ये है कि डीलिंग विद अनसर्टेनिटी. एंड ये जो अमन का एक जर्नी ही काइंड ऑफ, आई वुड रादर से अमन के अमन आप another 6 months or maybe next year's result or however whatever happens, I'm going to come back to you and talk to you. And Definitely. we want to see that कि एक experiment सा भी होगा कि with your mindset what you speak and how strong you Yes, followed up and what actually uh, like a live example. I would So be the one to call you, sir. and definitely don't forget. Yes, So sir. not for just not a reality show kind of a thing, because yeah, this is not dictated, this is not scripted. Like हम कोशिश कर रहे हैं कि maybe tomorrow you land up to something else which is better, but with your mindset I'm sure you're going to, in fact, जो बच्चे आज डायलेमा में हैं, कई बार क्या होता है हम छोड़ भी नहीं पाते, इतने जिद में पड़ जाता है Exactly. कि आदमी बोलता है Yes, sir. यही जिंदगी है ना, कीप ऑन गिविंग Mm. अटेम्प्ट. ऐसा नहीं है, इट डजंट डिफाइन यू एट ऑल. एंड सो आई वुड से दैट बेटर इज टू आपके जो कल है उसकी तरफ ध्यान दे के आप उस पे एफर्ट मारें, और उसके बाद जो कर्म आउटकम करे आएगा सर, उस, बस. हाँ हाँ. उस पे आप कर्म करे, फिर फल तो डिसीजन ऊपर लेंगे. वाले की है. हाँ फिर Exactly. डिसीजन लोगे, फिर एक डायलेमा आएगा. Yes, sir. तो यही है, ये तो हमेशा चलता रहेगा कि आप
आप होटल में भी जाते हो तो एक खाना नहीं होता, मेनू कार्ड पकड़ा रहता है, वहां पे भी डिसीजन में कि क्या खाना है ये भी सोचना पड़ता है, तो द होल लॉट ऑफ थिंग. So with this, thank you so much, Aman, for your time, for your quick acceptance, and I would like to say that I found your details from the UPSC's public this thing where previous years aspirant were Pratibha given Sindhu to portal. you. Yes. Yeah, so like that they don't get details. I found out, and I'm very happy that we could connect over this, and not just for the UPSC aspirant but also the aspirants जनरली अपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर ए करियर टुडे, चाहे वो कैट हो, चाहे वो यूपीएस अदर एग्जाम्स हो, जो जहाँ पे कई बार ना आप मल्टीपल अटेम्प्ट्स और फेलियर्स की बात आती है, दे वुड डेफिनेटली Yes, sir. लर्न a bit from your way and approach towards the exam and life. Thank you so much. It was lovely talking to you, sir. Thank Had you. a best time. Thank you, sir.